Louisa Server, and today I will be leading a session on the psychology of consistency. So, consistency is often talked about as a discipline issue, but in reality, it is deeply rooted in how our brain works. Tonight, we will explore why staying consistent is difficult and how psychology can help us make consistency sustainable rather than exhausting. Okay, is it clear now? Okay, guys, please let me know. Is my voice clear now? Okay, so let's commence our lecture. Most people believe success is about motivation, and we are told to stay motivated, feel inspired, and push harder. Yet, psychology repeatedly shows that motivation is unstable, unreliable, and emotionally driven. So, this is not a motivational talk, this is a psychological explanation of human behavior. कितनी बार ऐसा हुआ कि आप लोग अपनी रूटीन्स को चेंज करना चाहते हैं बट फेल टू कंटिन्यू? आप लोगों की इंटेंशंस सिंसियर थी लेकिन बिहेवियर कंटिन्यू नहीं रहता. Okay, so by the end of this lecture you should intellectually understand, not just believe, why motivation cannot sustain behavior. कि मोटिवेशन फिजिकली एंड मेंटली बिहेवियर को सपोर्ट नहीं कर सकती. You will also understand why consistency aligns better with how the brain works and how religion emphasizes discipline over emotional enthusiasm. So we got a very important distinction in psychology कि intention और behavior में क्या difference है. हर human behavior problem में ये gap आता है. For example, people intend to study, they intend to exercise, they intend to play regularly, they intend to change. But intention alone cannot be converted into sustained action. अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो इंटेंशन लिंक्ड होती है कॉग्निटिव डोमेन के साथ. ठीक है, so as mentioned के people intend to change, intend to study, intend to exercise. So what does intention actually mean? इंटेंशन हम कहते हैं किसी भी थॉट को, डिसीजन को या प्लान को, जबकि बिहेवियर जो होता है वो लिंक्ड होता है बिहेवियरल एंड न्यूरोलॉजिकल डोमेन के साथ. And it requires energy, structure, cues, and repetition. Okay, look what I mentioned, repetition. This is the most important part of consistency. कि आप रिपीटेडली जो भी करते हैं वो आपका बिहेवियर बनता है, उससे आपकी हैबिट्स बनती हैं, इन द एंड आपकी पर्सनालिटी बनती है. एक फेमस थिंग भी है फ्रॉम द हिस्टोरिकल थ्योरी कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू. सो एक्सीलेंस इज देन नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट.
if something is logically right, so it's not necessary that our brain will follow that and will proceed that. इसको हम अगर एग्जाम्पल में देखें तो हम जानते हैं कि it's good to say prayer, it's good to study, to go to gym, but still most of the time we can't make it. ठीक है, बिकॉज हमारी ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी होती है वो डिपेंड करती है इमोशंस पे, कंफर्ट पे, हैबिट्स पे, फियर, इमीडिएट रिवॉर्ड एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सब मिलके हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, सो इसलिए अगर आपके पास right knowledge hai, it doesn't mean that you will take the right action, because your emotions, your habits, your past experiences are controlling that action. और इसीलिए अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर को चेंज नहीं कर देगा. सो हमारे पास एक और क्रिटिकल डिस्टिंक्शन आती है बिटवीन डिजायर एंड डिसिप्लिन. अब डिजायर हमारे पास जो होती है वो इमोशनल होती है, जबकि डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रक्चरल है. एंड आवर डिजायर चेंज अकॉर्डिंग टू मूड, according to sleep, stress, and environment. Sorry, guys, you have to bear. I have a bad throat. My voice may, fluctuate many times. Okay, so discipline operates even when desire is absent, and most people confuse strong desire with readiness for change. कि एक टाइम आपको कोई भी डिजायर आती है टू बी सक्सेसफुल, या आप कुछ भी सोचते हैं इन दैट हाईली इमोशनल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक दैट यू वांट टू बी द बेस्ट फुटबॉल कोच फॉर एग्जाम्पल, अब उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको फुलफिल करना होगा. But what was that? That was just desire. So you are not ready to accept that change. You're not ready for that discipline. You're not ready for that consistent hard work. ठीक है, सो वहां पर इस डिजायर का कोई फायदा नहीं है. बिहेवियरल साइकोलॉजी में हम इसे इंटेंशन बिहेवियर गैप कहते हैं. ठीक है, मतलब हम अब क्या करते हैं कि फ्यूचर मोटिवेशन की पावर को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि एज आई मेंशन्ड नाउ कि आप इमोशनल स्टेट में, ठीक है, आप हाईली मोटिवेट फील करते हो. ठीक है, आप कोई भी डिसीजन लेते हो एंड एट द टाइम इट इज ओवरवेल्म्ड. ठीक है, वो थॉट आपके ऊपर उस टाइम पे गालिब आती है एंड यू थिंक के लाइक दिस इज इनफ. हम उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं. But for that long term goal, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को बेयर करना होता है, उनको सप्रेस करना होता है. एंड सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती. ठीक है, इमोशंस एक जैसे नहीं रहते, मोटिवेशन एक जैसी नहीं रहती, और इन फ्यूचर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. तो उस जब हम अब हाईली मोटिवेटेड थे, अब हमने उन सारी चीजों को निग्लेक्ट किया. ठीक है, कि जो फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस थे उसके रेजिस्टेंस को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं. सो इसी मिसमैच की वजह से इन एक्शन आता है, गिल्ट आता है, सेल्फ ब्लेम आता है. we think, we plan कि हम ये करेंगे in the start, maybe you initiate that, but due to some challenges आप वो नहीं कर पाते, फिर खुद को ब्लेम किया जाता है कि I'm lazy, I'm not disciplined, I'm not able to do so. जबकि आपकी सिंसियर इंटेंशंस होती हैं उस गोल को अचीव करने की.
सो अब ये जो फेलियर आया, ये कोई मोरल फेलियर नहीं है, ये एक प्रिडिक्टेबल साइकोलॉजिकल आउटकम होता है जब सिस्टम्स मिसिंग होते हैं। जब स्टूडेंट्स रिपीटेडली वो नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं, तो वो नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि एकेडमिकली जब हमारे सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं तो स्टूडेंट्स फील रियली मोटिवेटेड, they intend to attend all lectures, revise weekly and prepare early for exams. ये हमेशा होता है, लाइक हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने इर्द गिर्द अपने क्लासमेट से खुद भी खैर ये अगर रूटीन रहती है, सुनते रहते हैं कि इस सेमेस्टर में हमेशा जब भी कोई नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो तब वो हर कोई मोटिवेटेड होता है। जैसे सिंपल वर्ड्स में कहा जाता था ना कि इस सेमेस्टर में हम आग लगा देंगे, मतलब इतना शुरू से ही जो है वो हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, सब कुछ जो है वो साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट लाइक 80 to 90% स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो एक मोटिवेशन होती है दैट फेड्स बाय द मिड ऑफ सेमेस्टर। सो यहाँ पर इंटेलिजेंस लेवल जो है वो चेंज नहीं होता, इंटेंशन डिसअपियर नहीं होती, आप वो करना चाहते हैं। So what disappeared was the system supporting that intention. So if intention would enough, psychologists would never need behavior therapy. That's a proof that humans need system, cues, repetition, and environment, not just the motivation to change behavior. So हमारे साइकाइट्रिस्ट के पास जो केसेस आते हैं, सो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता कि लाइक पीपल आर लाइक दैट मच मेंटली डिस्टर्ब, लाइक दैट दे नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, सो दे नो कि क्या हुआ है एंड हाउ दे कैन सप्रेस, और वो खुद ही जो है वो एक डिसीजन लेते हैं चेंज करने का। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब उनकी इंटेंशन है अपने बिहेवियर को चेंज करने की। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इंटेंशन अलोन इज नॉट इनफ, ठीक है। सो देयर इज अ नीड ऑफ बिहेवियर, and to adapt that behavior we need proper system, proper environment. Okay, so to understand what motivation scientifically is, motivation linked होती है dopamine के साथ, like most of people are aware of what dopamine is. ये एक neurotransmitter होता है जो कि associate होता है anticipation के साथ and reward के साथ. For example, if there is some exciting thing, so it spikes and your brain quickly adapts that. So starting में ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को लेके, किसी भी गोल को लेके हम मोटिवेटेड फील करते हैं, बट व्हेन दैट नोवेलिटी फेड्स देन डोपामिन डिक्रीजेस। तो जब डोपामिन डिक्रीज होगा तो मोटिवेशन जो होगी वो खुद ही जब ड्रॉप कर जाएगी। सो दिस इज नॉट लेजीनेस, this is neurobiology. Okay, so now the question is why motivation cannot be sustained, let's say for the long term goals. Motivation depends upon emotional stability, on mental energy and favorable conditions. But जब हम real life की बात करते हैं, it is chaotic and it's full of stress, illness, disappointment and workload. तो ये जब सारे फैक्टर्स आते हैं तो ये सब मोटिवेशन को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। And how our brain functions. A brain is evolved to conserve energy.
एफर्ट्स को हमेशा ब्रेन इंटरप्रेट करता है एज अ थ्रेट। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं आप लोगों के साथ कोई बहुत अच्छी बुक शेयर कर रही हूँ और आप लोगों ने इसको पढ़ना है, फॉर एग्जांपल इट्स हैव 200 पेजेस, तो आप लोगों ने सेशन के बाद उसको पढ़ के सोना है, तो आप लोगों का ब्रेन फौरन ही ओवरवेल्म्ड फील करेगा, क्योंकि लाइक इट्स अ बिग टास्क। ठीक है, मे बी लाइक 1 or 2 स्टूडेंट्स में अकम्प्लिश दिस टास्क, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि एक बहुत अच्छी बुक है, बट आई एम गोना शेयर इट्स समरी विद यू लाइक दिस वन पैराग्राफ, तो लाइक 90 to 95 स्टूडेंट्स उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, सो व्हाट्स द पॉइंट कि हमारा ब्रेन जो है वो स्मॉल एक्शंस को सपोर्ट करता है। एंड मोटिवेशन रिक्वायर्स कांस्टेंट मेंटल एफर्ट, जबकि हैबिट्स के केस में क्या होता है, एनर्जी कंजप्शन कम होती है। अब हम इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसकी हैबिट है कि उसने डेली 3 आवर्स पढ़ना है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उसको मुश्किल हुई होगी या जब भी उसने हैबिट बनाई होगी, बट अब उसकी हैबिट बन चुकी है लेट्स से फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। तो अब वो जब उसकी हैबिट बन गई है तो उसको मुश्किल नहीं होगी, उसकी ज्यादा एनर्जी उसमें यूटिलाइज नहीं होगी एज कम्पेयर टू दैट। अब एक स्टूडेंट है जो कि पहले नहीं पढ़ता था, उसकी कोई हैबिट नहीं थी पढ़ने वाली, अब वो उसने मोटिवेटेड फील किया एंड ही डिसाइडेड कि अब मैंने पढ़ना है। बट अब क्योंकि अब उसने एक नई हैबिट बनानी है, एक नए बिहेवियर को जब अडॉप्ट करना है, तो उसकी बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट वहां पर लगेगी। पर यस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो एक हैबिट बन जाएगी तो एनर्जी कम से कम कंज्यूम होगी। इसीलिए जो रिपीटेड बिहेवियर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं और ये ब्रेन रिसोर्सेज को सेव करते हैं। Okay, so if we talk about the willpower, that is considered as a limited resource. So research shows that willpower is finite. मतलब हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारी मेंटल एनर्जी को कम करेगा। So when we expect students or professionals to rely on willpower daily, that is psychologically unrealistic. For example, आपको कोई भी नया टास्क करना है एंड डेली आपको उसके बारे में सोचना है, आपको उसके बारे में प्लान करना है कि मैंने इसको कब करना है और कैसे करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी और दैट्स नॉट पॉसिबल कि लॉन्ग टर्म में आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नो, सो दैट इज साइकोलॉजिकली इम्पॉसिबल। So what is consistency according to psychology? A consistency is not the intensity, just like the motivation. It is a repetition of behavior regardless of emotional state.
मतलब you have to do what you have to do. It doesn't matter कि आपका मूड अच्छा है या बुरा है. So whenever you are consistent in something, you do that without caring about your mood. So from a psychological standpoint, consistency transforms effort into automaticity. कि जब आपका ये कोई भी बिहेवियर कंसिस्टेंट बन जाता है तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है. ठीक है, यू जस्ट लाइक ऑटोमेटिकली डू दैट एंड दैट लीड्स टू हैबिट फॉर्मेशन. And habits form through neurological loop. Okay, anyone here who know about Q? You may unmute yourself, you may answer in the chat box. What is Q? Okay, no one? Yeah, it can be considered a sign. Q हमारे पास वो ट्रिगर होता है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले जिसके थ्रू हम उस एक्शन को इनिशिएट करते हैं या जहां से उसको स्टार्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर पढ़ना आपकी हैबिट है, ठीक है, सो उस केस में क्यों क्या होगा, योर स्पेसिफिक स्टडी प्लेस और स्टडी टेबल जहां पर आप हमेशा पढ़ते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप अपने स्टडी टेबल पर गए, सो वो इन्वायरमेंट आपको ट्रिगर करेगा कि नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडी. ठीक है, सो दैट इज द क्यू, और जो कि हर केस में चेंज होता है. क्यों आपके पास इमोशन भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वो चीज जो कि आपको ट्रिगर करती है कोई भी एक्शन लेने के लिए. उसके बाद ओके, जब आप आपको क्यू ने ट्रिगर किया टू डू समथिंग एंड देन अकॉर्डिंग टू रूटीन आप जो भी काम करते हो, यू डिड दैट एंड इन द एंड you give yourself reward. For example, if you are studying, so you took a small break, so that is a reward. So once habits established, the prefrontal cortex disengages and behavior becomes automatic. So consistency builds habit and motivation cannot. Of course, that's very clear कि motivation कभी भी habits नहीं बना सकते. Modern psychology confirms what religion has long taught: behavior follows identity. When a person internalizes that I'm disciplined, so his actions naturally align with that. For example, एक स्टूडेंट है जो कि कहता है कि I'm a serious learner. ठीक है, I'm good in studies and I love to study. I enjoy, studying. On the other hand, there is another student who says that I don't like study, or I just study whenever I feel good or I just want to study. So this is their identity. Like they are recognized by that कि एक वो स्टूडेंट है जो कि एक सीरियस लर्नर है जिसको पढ़ने का शौक है, ऑन द अदर हैंड एक वो स्टूडेंट है जिसको पढ़ने का शौक नहीं है. सो देयर आइडेंटिटीज आर लीडिंग देम टुवर्ड्स देयर कंसिस्टेंट बिहेवियर. आपका जो पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है, जो आइडियोलॉजी होगी उसी से आपकी आइडेंटिटी बनेगी और वो ही डिसाइड करेगी
कि आप किन एक्शंस को कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। और अगर हम रिलीजियसली इसको देखें तो देयर आर टू थिंग्स इंक्लूडिंग इन दिस, अमल एंड इस्तकामा। So Islam never emphasizes emotional motivation alone. हमें जो भी जो अमाल जो है जिनका हमें हुक्म दिया गया है, हमें प्रैक्टिकली वो करना होता है, ठीक है। जिसमें सलाह, फास्टिंग एंड डिसिप्लिन आते हैं। और कंसिस्टेंसी की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है 5 prayers a day। आपने देखा होगा कि वो लोग जो कि like who pray 5 times a day, they can never miss their prayer. And it and never depends upon their mood, like either they're in the mood to say prayer or not, they have to say prayer anyway. So that is a consistent behavior, and the 5 prayers a day, it teaches you to be consistent. The Prophet ﷺ said, the most beloved deeds to Allah are those done consistently, even if they are small. So this is behavioral psychology embedded in religion. Okay, so हम इसको इस तरह से explain कर सकते हैं कि there is one person who after months decides 10 para. On the other hand, there is one person जो कि daily एक रुकू पढ़ रहा है। तो ज्यादा मीनिंगफुल किसको कहा गया है? जो बेशक स्मॉल एक्शन ले रहा है, ठीक है, स्मॉल डीड्स हैं, बट जो कंसिस्टेंटली कर रहा है। ओके, कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा पावरफुल है, चाहे आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, व्हेन इट्स वेरी स्मॉल, बट इट टेक्स यू टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म चेंज। साइकोलॉजिकली स्मॉल एक्शंस रिड्यूस रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी, एक पूरी बुक पढ़ने वाली या समरी पढ़ने वाली, पैराग्राफ्स पढ़ने वाली। तो whenever you decide to take a small action, for example अगर आप अभी सोचते हैं कि आपने एक पेज पढ़ना है, तो you can easily read that. और on the other hand if you think कि मैंने 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ना है, तो वो आपका ब्रेन उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। So the brain accepts small effort more easily, and over time these actions compound into identity and mastery. So the purpose here is, you may take small actions but you have to perform those daily. इसमें हम टर्टल थ्योरी को भी मेंशन कर सकते हैं। टर्टल थ्योरी के अकॉर्डिंग टर्टल्स ऑलवेज मेक इट टू द शोर, कि टर्टल्स की जो पेस है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। Like they don't care about the environment, about what's happening in their surrounding, nothing. They just keep moving, keep moving, keep moving, and they reach to their destination. So it's all about consistency. और उनकी pace बहुत slow होती है। And one thing we get from the turtle theory is that कि आपका कोई भी बहुत बड़ा गोल है, बट अगर आप डेली एक्शन ले रहे हैं और आप बहुत स्लो पेस के साथ भी चल रहे हैं, पर इफ यू आर कंसिस्टेंट, सो वन डे यू विल रीच देयर। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है कि अब जब हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं, तब तो हम, like if, for example, if we have to study, if we have to go to gym, we have to do exercise, whatever, हम वो बहुत easily कर लेते हैं। बट जब हम motivated feel नहीं करते, so what we have to do in that scenario and how to be consistent? So most theories fail here and most people quit here.
when their motivation drops. So anyone can act when motivation is high, and psychology is concerned with what happens when motivation disappears. That is the concern. So first, we must clearly accept a scientific reality. So low motivation is not an exception; it happens with everyone. So it is a default state over time, and motivation spikes are temporary because they rely on emotional arousal and novelty. As repetition increases, emotional intensity naturally decreases. Like when you are doing something consistently for some days, तो वो जो इमोशनल इंटेंसिटी है या वो जो रेजिस्टेंस आ रही है, चाहे वो आपके इमोशंस की तरफ से है या किसी भी और वजह से है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी. So expecting sustained motivation contradicts how the nervous system functions. And from a behavioral psychological perspective, consistency can never be tested on good days. It is tested on the bad days, or in the days of fatigue, stress, disappointment, or emotional overload. If a behavior depends on feeling good, it is not a stable behavior. और यही चीज होती है कि आपकी बिहेवियर में आपकी जो हैबिट्स होती हैं, आप एक जो काम आपकी एक आपकी हैबिट बन चुका है, आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन चुका है, सो यू जस्ट डू इट एनीवे. तो उस टाइम पे आप ये नहीं देख रहे होते कि आपका मूड अच्छा है या आपका मूड खराब है, आपका कैसी इन्वायरमेंट है, क्या सराउंडिंग है, वो आप फ्लो के साथ ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं. So this is a point where minimum standard becomes essential, which point means the case of low motivation. So a minimum standard is the smallest version of behavior that maintains identity and continuity. It is deliberately designed to be achievable even when motivation, energy, and mood are low. Okay, guys, I've mentioned the word continuity and identity. मैंने इसको पहले भी explain किया था. Can anyone explain it further? कि continuity और identity का आपस में क्या link है? You may respond in the chat box or may unmute yourself. Yet how our identities control the continuity? Guys, am I audible? Okay, but no one wanna respond. Okay, no worries, Vasily. Okay, my screen is not stuck, Jawad. Actually, there's a lot to discuss about consistency during low motivation. So I'm still on this slide. I'm still explaining this point. Okay, so why does this work psychologically? Because the brain resists starting large tasks under low energy but accepts small actions.
So once an action begins, resistance decreases. अब आप इस बात को भी जानते हैं कि हमने ये भी सुना हुआ है कि स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है, और जो भी रेजिस्टेंस होती है, जो भी फियर होता है, वो स्टार्टिंग में होता है। एक बार जब हम एक्शन ले लेते हैं, तो हाफ से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो तो उसी टाइम पे ख़त्म हो जाती है, एंड ग्रेजुअली इट डिक्रीजेस. Muhammad Ahmad is saying during this we should use different strategies. Muhammad Ahmad, do you mean in case of low motivation? Okay, yeah, exactly, you're right. Okay, so more importantly, even minimal action preserves identity consistency. So the belief that I'm a kind of person who doesn't quit. जैसा कि अभी अहमद ने बोला कि हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं, उन स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी जो है वो बिलीफ सिस्टम की भी है. व्हेन यू बिलीव दैट आई डोंट क्विट इजीली, ठीक है, सो इट ऑल्सो कीप्स यू मूविंग. Okay, so now consider the alternative. When people skip action entirely on low motivation days, the brain records this as evidence of inconsistency. So over time, this erodes self trust. Actually, when we are consistent, तो हमें internal confidence भी मिलता है. But when we feel low और हम कोई भी action नहीं लेते, हम कोई भी काम नहीं करते, तो उससे हमारा confidence जो है वो ड्रॉप कर जाता है. सो अब होता क्या है, द पर्सन डजंट मिस जस्ट अ टास्क, दे डैमेज देयर आइडेंटिटी, दे डैमेज देयर कॉन्फिडेंस. So this leads us to the non-zero principle. Doing something, however small it is, neurologically and physiologically superior to doing nothing. कि आप अगर लो भी फील कर रहे हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस में हैं, whatever the situation is, but you still you took some action. कि कभी ऐसा केस होता है कि आपका पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, बट आपने कहा कि लाइक लेट्स स्टडी फॉर 10 मिनट्स. ठीक है, आप रेगुलरली अगर 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ते हैं, बट एट दैट डे यू जस्ट स्टडी फॉर 10 मिनट्स. बट यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पर नॉन जीरो प्रिंसिपल को फॉलो किया कि आपने एटलीस्ट कुछ तो किया. सो इट इज सुपीरियर ओवर डूइंग नथिंग. Non-zero actions prevent habit decay. They keep the neural pathway active. I hope you get this point कि जब आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं and you feel like doing nothing, but still आप एक छोटा सा एक्शन लेते हो, ठीक है, आप बहुत कम टाइम के लिए भी अगर जो है वो अपना काम करते हैं, तो वो आपकी उस हैबिट को एक्टिव रखता है. So importantly, this is not about lowering standards permanently. It's about protecting the continuity. कि वो हमारा जो एक consistent behavior है, हमने उसको protect किया, हमने उसको damage होने से बचाया. और emotions obviously हमेशा एक जैसे नहीं रहते. कि if the one day you're feeling low, so hopefully inshallah the next day you will be, quite active or more energetic. Okay, so a consistency requires flexibility, not rigidity. कि you don't need to be rigid कि अगर मैं
पहले भी लाइक आई एम स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, तो अब भी मुझे 3 आवर्स पढ़ना है. So from a cognitive perspective, people quit not because they are incapable, but because they interpret low performance as a failure. अब ये भी बहुत से केसेस में होता है कि अब किसी ने कोई भी रूटीन जो है वो उसको फॉलो करना शुरू किया. For example, if they're going to gym and the person went there for 10 days or 15 days, but maybe okay on the 15 days they were feeling low, ठीक है, वो जिम नहीं गया. अब हुआ क्या कि यहाँ पर क्या हुआ, उसने नॉन जीरो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, ठीक है. सो लाइक ही डिड नथिंग. अब उसके बाद क्या होगा, लाइक एक दिन या 2 दिन इफ दे मिस दैट, सो दे विल कंसीडर इट एज अ फेलियर. उसके बाद बहुत से लोग वहीं पर क्विट कर देते हैं आफ्टर आफ्टर देयर फर्स्ट फेलियर. So this is a thinking error. This is not the actual failure. Consistency means redefining success as showing up, not performing perfectly. And religiously, this principle aligns perfectly with Islamic teachings. Like Islam emphasizes regularity over intensity. So active workshops are structured to continue regardless of emotional state, and this teaches psychological endurance. As just have um, give the example of saying prayers 5 times a day. So that best suits here. Okay, why willpower fails without structure? From decades of behavioral research, one conclusion is very clear. Environment shapes behavior more powerfully than intention or willpower. So here we are more inclined towards environment. Humans consistently overestimate internal control and underestimate the situational influence. So this error is called fundamental attribution bias. When we say I lack self-control, what we usually mean is I'm operating in an environment that constantly triggers unwanted behavior. ओके, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो आपके लाइक जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, वो कैसे कंट्रोल करती है आपके बिहेवियर्स को और किस तरह से ये डोमिनेंट होती है इंटरनल इन्वायरमेंट पे. So the brain responds automatically to cues. Willpower is reactive and environment is proactive. Psychologically, every environment contains behavioral prompts, visual cues, accessibility, social norms. So when a behavior is easy, visible, and socially reinforced, it becomes consistent. And when it is hidden, effortful, or delayed, it fades. So this explains why motivation-based change fails. So motivation asks the individual to fight the environment repeatedly. Consistency redesigns the environment so resistance is reduced. So in practical terms, disciplined people are not stronger just internally, they are smarter externally. So they know कि बाहर से जो resistance आ रही है उसको उन्होंने कैसे suppress करना है. They remove the friction from desired behaviors and add friction to undesired ones.
Okay, so now here's a question that why people quit. That's linked to psychological errors. So most people do not quit because a system fails. They quit because of how they interpret failure. Cognitive psychology shows that humans engage in distorted thinking patterns. All or nothing thinking convinces people that missing once equals failure. ये वही बात है जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि आप अगर कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी नई हैबिट अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इन स्टार्टिंग इफ यू जस्ट मिस्ड इट फॉर 1 डे और 2 डे, तो वो चीज़ इतनी ओवरवेल्म हो जाती है आपके माइंड पे, जस्ट कंसीडर इट एज अ फेलियर, वहीं पर क्विट कर देते हैं. And perfectionism raises standards so high that consistency becomes impossible. ओके एक ये चीज भी होती है कि हम स्टार्टिंग में कभी भी परफेक्ट नहीं होते. Everything takes time, and when we repeatedly do something, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, हम उसके बाद ही परफेक्ट होते हैं, टेक अ लॉट ऑफ टाइम. पर हमारे माइंड में क्या चीज होती है? परफेक्शन होती है. हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट में ही परफेक्ट बन जाए. तो कई बार ऐसा होता है कि देयर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, और हम शुरू में उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग में तो हम फेल हो रहे होते हैं. तो वो जो फिर हमारी परफेक्शनिज्म के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मोटिवेशन को इतना ड्रॉप करते हैं, या वो जो भी आपका जो भी पर्पस होता है उसको लेके उसको इतना सप्रेस करते हैं that people quit there. So emotional reasoning makes people believe that feeling demotivated means they should stop. जबकि इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता. अभी खैर अहमद ने एक बहुत सिंपल सी और बहुत कॉमन बात की थी, बट वो अगर आप उसको डीपली देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वहां पर उसने कहा कि हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी से उनको अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ पॉइंट वेयर यू हैव टू टेक द एक्शन, वेयर यू हैव टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स एंड टेक दैट एक्शन. और वहीं पर आप नॉन जीरो प्रिंसिपल जो होता है उसको आप ओवरकम करे. तो वी गोट अनदर मैसेज फ्रॉम अरहम. Okay, Arham is asking a question. Okay, Arham, you and the other guys who wanna ask anything, or we are just having the few slides, तो हम एंड में इसको डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन आंसर सेशन होगा भी लेक्चर के बाद. Okay, these errors convert temporary disruption into permanent abandonment. Consistency requires cognitive flexibility, the ability to resume without self-judgment. Okay, this is the task for you guys, where you have to identify the weak systems, or you have to identify कि आपको कोई भी एग्जांपल अपने माइंड में लानी है कि आप कोई भी एक्शन लेने वाले थे, आपको कोई भी गोल था, पर अगर आपने उसको स्टार्ट किया तो कौन सी रेजिस्टेंस, कौन से चैलेंजेस आए जिसकी वजह से आपने उसको छोड़ दिया, या इन केस अगर आप स्टार्ट ही नहीं कर पाए तो व्हाट वर द फैक्टर्स जिनकी वजह से आप कोई एक्शन ही नहीं ले पाए. So consistency is not only behavior, it is relational. A relationship with oneself.
Each time a person shows up, even minimally, the brain records reliability. So over time, this creates self-trust. And repeated inconsistency damages self-trust, not ability. So once the trust is broken, the motivation collapses further because the individual no longer believes in their own promises. Consistency repairs this relationship. And the small kept promises are psychologically more powerful than ambitious broken ones. Okay, this is also very famous saying as well, that discipline is a freedom. Like the people who are disciplined are more free as compared to those who are not disciplined. So why they're not free? Because they are in a prison of emotions, stress, fear, past experiences. And the person who will be disciplined, they will achieve their goals anyway. So true freedom is not acting on impulse, it is acting consistently in alignment with values. So motivation excites, but consistency liberates. Okay, guys, this was all about today's session. So now you may ask the questions if you have any query. ओके, सबसे पहले हम अरहम के क्वेश्चन का आंसर करते हैं. ओके, सो अरहम ने पूछा था कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं क्विटिंग को अवॉइड करने के लिए. सो अरहम, अभी हमने जैसा कि लेक्चर में डिस्कस किया कि टेक स्मॉल एक्शंस और डू योर वर्क इन चंक्स. एक्चुअली इसके ऊपर आई गेस एक पूरा लेक्चर हम डिलीवर कर सकते हैं, बट इन अ नटशेल सबसे पहले ये होगा कि स्मॉल एक्शंस लें कि इन केस इफ यू आर स्टडिंग फॉर 2 or 3 hours, दिस टाइम स्टडी फॉर 30 minutes और 10 minutes. ठीक है. उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस है आपकी सराउंडिंग में, जो भी फ्रिक्शन आ रही है उस काम को सप्रेस करने की, या वो आपको रीजन मिल रही है कि हमने ये काम नहीं करना, आप उनको पहले तो आइडेंटिफाई करें. ठीक है, देन उनको रिमूव करने की कोशिश करें. अभी हम क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टडी की एग्जांपल लेंगे कि फॉर एग्जांपल अब एक दिन आपका पढ़ने का दिल नहीं है. अब इसका ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक, जैसे कि आप एक स्पेसिफिक स्पॉट डिसाइड कर लेते हैं कि आई स्टडी हियर. ठीक है, वो आपके घर की कोई भी जगह हो सकती है. ठीक है, आप एक जो स्पेसिफिक प्लेस है, जस्ट लाइक स्पेसिफाइड फॉर योर स्टडी पर्पस,
either it's your study table or whatever it is. So जब आप उस जगह पर चले गए, so now your brain will process that and it will know कि अब मुझे ये काम करना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है. So prepare your environment according to that. एक और चीज जो कि हमने डिस्कस की थी, आइडेंटिटी. तो से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, थिंक पॉजिटिव, ठीक है. Just like bring it in your mind that I'm a disciplined learner, ठीक है. I never quit. इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लेके आए, ठीक है. ये तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाएंगी, ठीक है. पॉजिटिव वाइब्स आएंगी एंड यू वुड लाइक टू डू दैट. फिर एक और रूल बनाए कि नेवर मिस ट्वाइस, कि फॉर एग्जांपल क्विट क्विट करने में ये होता है, चलो इन केस आपने एक दिन एक्शन नहीं लिया बट द सेकंड डे यू जस्ट डिसाइड कि कल लास्ट डे मैंने नहीं पढ़ा, मैंने एक्शन नहीं लिया, पर आज ऐसा नहीं होगा. इट्स लाइक नॉन निगोशिएबल हियर कि आज मुझे हर केस में एक्शन लेना है, ठीक है. तो लाइक एटलीस्ट सेकंड डे आप उस रेजिस्टेंस को सप्रेस करने की कोशिश करें और एक्शन लें. फिर अपनी फीलिंग्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती. आपने कोई भी हैबिट बनानी है, ठीक है. जब आपकी हैबिट बन जाती है तब तो चीज़ें ईजी होती हैं, ठीक है. इधर यू आर इन अ गुड मूड और अ बैड मूड, आप कर लेते हैं. और शुरू में स्टार्टिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट. तो उस टाइम पे अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर डोमिनेंट ना होने दें, ठीक है. व्हेन आवर प्रायोरिटीज आर सेट, जब हमारा गोल, जो भी पर्पस होगा वो हमारी प्रायोरिटी होगा, तो हमारी फीलिंग्स पे मैटर नहीं करेंगी. यू जस्ट डू इट एनीवे. Okay, so we got another question from Avasali. Do you think that we can do multiple things at a time, and how it prioritizes it a habit, or should we quit one thing to form the other? It can build for multiple things going on during the time. Okay, Avasali, there are two things. एक होती है multitasking और एक होती है to do multiple things at the same time. So being a multitasker is a very good thing, but at one time if you are doing a lot of things, so that is not appreciated at all. So at one time you just need to be focused on one task. Once you accomplish that, then you may go for the next one. और हम कंसिस्टेंसी से हमारे एक्शंस में फ्लो आता है, तो वो फ्लो उसी केस में आता है कि जब हम डीपली ड्रिवन होते हैं इनटू दैट एक्शन, व्हेन वी डोंट थिंक अबाउट द अदर थिंग्स, व्हेन वी जस्ट लाइक फोकस्ड ऑन दैट टास्क, फिर ही फ्लो आएगा ना. तो अगर हम बहुत सारे एक्शंस को जस्ट लाइक कैरिंग एट वन टाइम, तो हम कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे. सो लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप एक टाइम पे एक ही काम कर रहे हैं. Okay, Abdul Hadi has commented that to avoid quitting behavior, we should have a strong motive to do something. Yeah, that's what I mentioned in the last when I was answering Arham, कि जब आपका मोटिव इम्पोर्टेंट होता है, जब आपकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं, जब आपका गोल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, तो फिर फीलिंग्स जो है वो फिर मैटर नहीं करती. Okay, how we can have a strong motive? We got a question here. By changing our belief systems, sometimes we hold cognitive distortions and misperceive them as belief. So to avoid quitting behavior should be a strong motive for doing something. Okay. Okay, Abdul Hadi, you have mentioned the question in your comment as well. तो क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं, और you just like finish that? Okay, Maheen is asking when we'll receive. Maheen, soon, inshallah.
I guess within 1 week, our team will share the certificates with you. Okay, Jawad Ahmed is asking that how we can keep the discipline track properly in improper environment or resources. Jawad, can you please specify about which improper environment you are talking? अगर आप मुझे बता देंगे तो that would be more easy to explain. Otherwise, I can give the general example. Okay, Jawad, please answer it. Till then, let me answer Mahnoor Munazza. Okay, Mahnoor. Mahnoor is asking कि हमें किन हैबिट्स को कंसिस्टेंट रखना चाहिए और किन को नहीं. So हर एक के गोल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है? एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज आपको उसको अचीव करने के लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो भी आपको एक्शन लेना पड़ता है, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दैट. अब अगर हम कॉमनली बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का एक कंसिस्टेंट बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसमें एक जो उनकी कंसिस्टेंट हैबिट होनी चाहिए वो स्टडी की हैबिट होनी चाहिए. लाइक दे शुड स्टडी रेगुलरली, ठीक है? ओके, एथिक्स, अगर आप एथिकल हैबिट्स की बात करें, so they never lead us towards depression. Okay, I guess like ethics are more related towards morals, you know, the way we communicate with others, the way we speak, the way we deal with others. So in simple words we can say it is our akhlaq. एंड वंस इट बिकम्स योर हैबिट तो ये तो आपको कभी भी डिप्रेशन की तरफ नहीं लेके जा सकता. जबकि जो आपकी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपने कोई कंपैरेटिव एग्जाम देना उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उस तरह के केसेस में जो है वो डिप्रेशन के चांसेस होते हैं. Okay, my students are consistent but are not getting any results in regard to success or achievements. Okay, so there is also our thinking error and the human behavior कि हम अगर कोई भी एक्शन लेते हैं तो हमें होता है कि हमें फौरन रिवॉर्ड मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता. अब आप लाइक अगर कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज में परफेक्ट होना है या रिवॉर्ड लेना है, सो यू नीड टू बी पेशेंट. इट ऑलवेज टेक्स टाइम. एंड अब बीइंग मुस्लिम से हमारा बिलीफ होना चाहिए कि whenever we struggle, so it never gets wasted. वो ना और दिन आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाता है और वो ज़रूर मिलता है. और आपको तब तक कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है? लाइक जस्ट डोंट स्टॉप. इन दैट केसेस क्योंकि कुछ लोगों के चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इन दैट केस यू जस्ट नीड टू बी स्टबर्न. बस लगे रहो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता.
ओके, अरहम इज सेइंग कि अगर हम कुछ टाइम के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ वीक्स के लिए, उसके बाद अगर हम डीमोटिवेट होते हैं, हमें तब क्या करना चाहिए? तो अरहम, दैट इज वेरी इजी केस। अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ भी करते हैं, ठीक है, दैट मेक्स योर हैबिट। फॉर एग्जांपल इफ यू डू समथिंग फॉर द 15 डेज, उसके बाद आफ्टर 15 डेज यू फील डीमोटिवेटेड, तो तब अगर आप एक दिन का रेस्ट ले भी लेते हैं, ठीक है, तो दैट डजंट ब्रेक दैट लूप। उस फिर उसमें ये होता है कि week, you just you know can't be demotivated for the whole week. You can be like demotivated for one day. आप एक दिन लें, आप उसमें रेस्ट करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें, डू व्हाटएवर मेक्स यू फील हैप्पी, बट द नेक्स्ट डे स्टार्ट योर वर्क। अभी मैंने आपका आपने जब पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें भी आंसर किया था कि डोंट मिस इट ट्वाइस, यू कैन जस्ट मिस इट वंस, ठीक है। सो सेकेंड डे आप उसको आप हर हाल में एक्शन लें। ओके, अब्दुल मतीन ने क्वेश्चन किया है, मैम अक्सर जब हम कोई गोल स्टार्ट करते हैं तो पहले 3-4 दिन हम बहुत डिसिप्लिन रहते हैं और प्लान फॉलो करते हैं, लेकिन 5th डे वी के बाद कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और सुस्ती आ जाती है। इस पैटर्न के पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या होती है, हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अब्दुल मतीन, इसी को हमने इस बात को अभी अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जब हम एक्सट्रीमली मोटिवेटेड होते हैं, हाई इमोशनल स्टेट होती है, तो लाइक तो उस टाइम पे आप क्या कह सकते हो, एक डिजायर आती है कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है, आप वो उस काम को स्टार्ट करते हैं, इन द स्टार्टिंग आप मोटिवेटेड फील करते हैं। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, like it's doesn't depend on how and when you feel like doing it, ठीक है। सो यही हम सारा डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो जो सारी टेक्निक्स हमने भी डिस्कस की थी उन सबको फॉलो करना चाहिए। साइकोलॉजिकल रीजंस भी हमने डिस्कस की थी ना, कि जो क्विटिंग वाली रीजन थी कि अगर कुछ दिन बाद हम वो काम नहीं कर पाते तो जो फेलियर आता है हमारे सामने उसकी वजह से क्विट कर देते हैं, या फिर जो वो परफेक्शनिज्म हमारे माइंड में होती है कि हमें परफेक्ट फौरन बनना होता है, या फिर ये रिवॉर्ड, अक्सर लोगों को बहुत जल्दी जल्दी रिवॉर्ड चाहिए होते हैं। तो ये सारी रीजंस होती हैं जो कि क्विटिंग की तरफ लेके जाती हैं। अच्छा, ये आप लोगों के सबके क्वेश्चन जो है लिंक्ड करते हैं, तो सिंपल सी बात बस ये है कि आप लोगों को अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको सप्रेस करना होता है, ठीक है, इस टाइम पे। क्योंकि अब अगर वो एक्शन आपकी हैबिट बन जाएगा फिर तो आपको मुश्किल नहीं होगी, बट शुरू में जब आपकी हैबिट नहीं बन रहा एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, उस टाइम पे डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, जस्ट डू इट एनीवे। बेशक आप उसको चंक्स में कर रहे हो, बहुत स्मॉल एक्शंस ले रहे हो, बट जस्ट डू इट, दैट इज द पॉइंट। प्रैक्टिकली अब्दुल मतीन, आप सोशल मीडिया से कैसे अवॉइड कर सकते हो व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, लाइक स्पेशली व्हेनेवर यू आर स्टडिंग, तो अपने फोन्स को आप लोग ऑफ करके साइड पे रख दें, ठीक है, इनको पावर ऑफ कर दें। तो कभी भी पढ़ते हुए फोन अपना अपने पास ना रखें, ठीक है, लाइक दैट इज अ सिंपल थिंग। और इसकी ये होती है कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम है, कोई भी चीज़ है, अभी हमारे पास ये ऑप्शंस भी होते हैं ना, हम बाकी ऐप्स को बंद कर देते हैं, तो बाकी ऐप्स का जो उनको जो डेटा प्रोवाइड का जो ऑप्शन होता है आप उसको बंद कर देना, ताकि वो बाकी ऐप्स को ना ही जो है वो नेट मिले और ना ही वहाँ पे कोई नोटिफिकेशंस आए इस तरह कि आपकी जो
रिक्वायर्ड ऐप है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़ोन से कुछ स्टडी करना है, नोट्स वगैरह हैं, तो आप वही चीज़ खोलें, बाकी चीज़ों को फिर बाकी ऐप्स को बंद कर दें। Okay, so Jawad Ahmed has said that improper environment means like no exact resources, diet, money, etc. towards consistency or not the coherence to environment. Okay, Jawad, most of the cases ऐसा नहीं होता क्योंकि डाइट भी सबको मिल रही होती है, मनी इश्यूज भी आई गेस इतने लोगों के नहीं होते, ये कम लोगों के साथ होता है। सो फॉर दोज पीपल दे नीड टू बी एक्स्ट्रा पेशेंट। बहुत ओके अब खैर ऐसे होते हैं, ऐसे लाइक फैमिलीज होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स कोई प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता पढ़ने का। तो उन केसेस में ये होता है लाइक एज यू आर अ बॉय यू कैन गो टू लाइब्रेरी, यू कैन गो टू कैफे। बॉयज के लिए तो आई गेस ज्यादा इजी होता है हमारे कल्चर में। आप लोग अब यूनिवर्सिटीज में आ गए, आप लोग ग्रुप स्टडीज किया करें, लाइक डू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, और कोशिश ये किया करें कि आप लोगों के जो भी लेक्चर्स होते हैं, आप बेशक 1-2 घंटे आप घर लेट जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, आप वहीं पर अपने लेक्चर्स है वो रिवाइज करके आया करें, वो या वहीं पर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लिया करें, या अगर आपका जितने बजे एक लेक्चर है फॉर एग्जांपल 10-11 बजे, आप थोड़ी देर पहले चले गए वहां पर लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ लिया इस तरह। तो वो डिपेंड करता है कि आपका आपकी क्या सराउंडिंग है, आप और किन रिसोर्सेज को आप अवेल कर सकते हो। आज का माहौल में भी बहुत इंटरप्ट करता है, क्या इंटरप्ट करता है अहमद? अहमद मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ओके बट द सिंपल थिंग इज कि आप लोगों के जो भी गोल्स हैं आप उनको अपनी प्रायोरिटी बनाएं। अगर आपके गोल्स, आपके मोटिव्स आपकी प्रायोरिटी होंगे तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती, ठीक है? आपकी जो भी सराउंडिंग्स है, लोग क्या कहते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, यू विल डू इट एनी वे। एंड इन दोज केसेस व्हेनेवर यू फील demotivated, तो जस्ट गो फॉर स्मॉल एक्शंस। बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। जस्ट लाइक यू नो जो भी अब आपकी हैबिट है, जो भी चीज़ है आप उसको करो, मे बी जस्ट फॉर 10 मिनट्स। और अगर आप एक दिन की ब्रेक ले रहे हो तो जस्ट गो फॉर इट ऑन सेकेंड डे। ओके अहमद इज सेइंग दैट environment कुछ ऐसा होता है। Okay, Ahmed. Okay, yes, I get your point. ये चीजें होती हैं, but whenever you are highly motivated to do something, तो environment, लोग जो हैं वो आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। Like whatever they are saying, you shouldn't be concerned about that. ठीक है? यूनिवर्सिटी तो हर सॉरी लाइब्रेरी तो हर यूनिवर्सिटी में होती है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपको अगर फॉर एग्जांपल आपके आप अपनी क्लास में तो ऑब्वियसली जो ऐसा एनवायरनमेंट होता है हम लोग नहीं पढ़ सकते।
तो आप किसी कैफ़े में चले जाएँ, लाइब्रेरी में चले जाएँ, जहाँ पे आप वहाँ पर बैठ के जब वो पढ़ लें। एंड फॉर द अदर थिंग्स कि अगर आपको कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ रही होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो येस, वहाँ पर ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी होती है। बट इन दोज़ केसेस जस्ट बी पेशेंट, कीप मूविंग, कीप स्ट्राइविंग। चाहे जैसा मर्ज़ी एनवायरनमेंट है, कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। उनकी आवाज़ से सेइंग में खाला सेज के घर में ना जूता फैन पे हैंग कर दो, अगर दिल ना करे पढ़ने को 2-4 खुद को लगा लो। या इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन, हर एक की हर सिचुएशन डिफरेंट होती है और आप खुद को हम ज़्यादा बेहतर जानते होते हैं, हमें पता होता है हम खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। आई गेस सबकी क्यूरीज क्लियर हैं। If you have another question, then you may ask. Otherwise, let's end the lecture. Exactly, Mohammed Ahmed. आप हम जब हैबिट्स की बात करते हैं, एक नई हैबिट को अपनी रूटीन में ऐड करने के लिए ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सो व्हेन यू आर you have to adopt new environment. So of course, it's difficult. Okay, today's environment is toxic for everyone. Kindly be kind to yourself, to the people around you, but don't compromise your mental health, otherwise you will regret it later. Do good without any reward. Your reward will be with Allah. And if people don't understand, don't help. Even when you feel do it alone, take help in classes. Okay, guys. आप लोगों की फेलो ने बहुत अच्छी सजेशंस दी हैं आप लोगों को। द थिंग इज आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर आप खुद ही हैं। एंड okay, guys, I have to explain and mention one thing that अभी बुराक एसोसिएशन जिसकी तरफ से सेशन हो रहा है, उन्होंने साइकोलॉजिकल हब बनाया है एंड इट्स फॉर द अवेयरनेस फॉर द यूथ। तो जैसा ये तो बिल्कुल पहला सेशन था और अभी ऐसे बहुत सारे सेशंस होंगे फॉर द होल ईयर, इन 2026। और इसमें हम बहुत से प्रोफेशनल्स को और साइकाइट्रिस्ट जो हैं उनके सेशंस करवाएंगे, उनका आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा। ये सारे सेशंस बिल्कुल फ्री होंगे। सो द पर्पस इज जस्ट टू अवेयर द यूथ, टू हेल्प द यूथ। तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा और जो भी सेशंस हो आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा, क्योंकि जब हम ऐसे सेशंस ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, तो हमें जो वो एनर्जी मिलती है, ठीक है, इमोशनली एंड मेंटली बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो और हम लोगों से भी जितना हुआ हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू गाइज, टू सपोर्ट पाकिस्तानी यूथ। Okay, yes, Avas, go ahead. Thank you, Rishabh, for that. I was just to share a story with Ahmed that there was a friend of mine, and he was very new in the city because he got admission in the university on a quota basis. So the condition was just that he was not able to untap the water tap, if you know.
and he was of such kind, and he himself recognized that he is in that position, and he started to utilize his gap. For an example, he started to make good friends in the hostel, and he started to communicate, and he himself recognized that he lacks in the communication skills and he lacks in academics, and he has to learn the new strategies and techniques. So I think after a year or two, he was able to, I would say, was a great orienter of, I would say, the Pakistan affairs, and because this he was living next to my room, so that is why I'm narrating his story. And then he went for the all Pakistan debating. Yeah, I think I was not able to recognize that how fast he adopts such things and become one of the best student of for campus. And after that, he cleared the CSs in a very first attempt because most of the students from our university they aspire to clear the CSs in second or third attempt even. And he was the guy. And I know that he was not able to write a complete sentence in the English, but he, because of his dedication and his passion to learn the things, and he gave his all the time. I think uh, I think I was in his room when he was going for a library to get some book and allocate some more books. So, I mean, for the guy who is from the village side and when he's coming to the urban side, I would say in the university, he has the facilities, he has the potential, he has some friends who have capacity, and why not he's not utilizing that sport to make the best or make the most out of the situation. So I think if Ahmed wants, I can give him the contact of that boy, and he can learn from his techniques or from his behavior or the patterns that he adopted. Thank you. Thank you so much, Avas, for sharing your great story. And Ahmed, yeah, sure, Ahmed, you may speak. Thank you so much, ma'am. First of Ahmed, are you speaking? Well, I'm not able to hear. sorry, ma'am. Hi, everyone, and thank you so much, ma'am. I was speaking, but mic का issue था. No worries. Thank you so much, Avas. मैम जैसे अवैस ने हमें ये एग्जांपल दिला कि हमें हमारे पास ये एग्जांपल्स कहीं कहीं मिलती हैं लाइक फॉर एग्जांपल अभी मेरा 5वां सेमेस्टर है तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाइक उनको अडॉप्ट करना मेरे लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई तो इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह वैस भाई ने हमें ये एग्जांपल इस तरह की एग्जांपल हमें कहीं कहीं मिलती है लाइक अभी मेरा 5वां सेमेस्टर है तो मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे बॉयज देखे हैं लाइक ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं इवन गर्ल्स भी हैं तो उनको ये चीज़ लाइक हमें तो फॉर एग्जांपल ये इस तरह के सेशन वगैरह या कोई होता है जो मोटिवेट कर देता है तो उन हमारे लिए तो अडॉप्ट करना लाइक इजी हो जाता है लाइक ये चीज़ हर कोई नहीं कर पाता लाइक कि 100 में से कोई 10 बंदे इस तरह की चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं एंड इवन माई क्लास माई कोलीग्स उनको भी इस चीज़ में बहुत डिफिकल्टी हुई है एंड कुछ तो क्विट कर गए हैं एंड कुछ अभी हैं कुछ लगे हुए हैं और कुछ से हो नहीं रहा ये बहुत सारे लाइक इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं मैम आप काइंडली प्रोसीड करें बस यही कहना था मुझे लाइक हम एक बंदा लाइक हो तो उस चीज को एक बंदा एग्जांपल ले तो एक आधा बंदा जो होता है 10 में से वो इस चीज को अडॉप्ट करता है लाइक बहुत सारे जो होते हैं या तो वो क्विट कर जाते हैं या वो जिस तरह का लाइक माहौल होता है यूनिवर्सिटी में उसके रिलेट होके उसी के साथ वो चलते हैं आई मीन के यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह का भी माहौल होता है आजकल की यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो बहुत ज्यादा लाइक वो होता है माहौल इस वजह से ये होता है Yeah, exactly. You are absolutely right.
ऐसा ही होता है। एंड अगर हम सक्सेसफुल लोगों की रेशियो की बात करें, there's like 1 to 2%, तो बाकी लोग जो है वो क्विट कर देते हैं। सो इस इन केसेस में इट डिपेंड्स अपॉन द अवेयरनेस, कि जिन लोगों को अवेयरनेस मिलती है, एंड देन इट्स द टेस्ट ऑफ देयर पर्सनालिटीज, देयर पर्सपेक्टिव्स, एंड डिपेंड्स अपॉन जो कि हमने आइडेंटिटी की बात की है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग जो हैं वो हार्ड टाइम्स में सरवाइव कर जाते हैं और कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सपेक्टिव, how you take the thing, and what you think about yourself, and what are your priorities, your goals. Guys, actually we have to end our session at 10:30, so like till now just don't want to end it। और अभी भी हमें बहुत सारे comments जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं, questions रिसीव हो रहे हैं, और जैसा कि अभी आप लोग अपने कंसर्न्स शेयर कर रहे हैं, जस्ट वांट कि पर्सनली एक स्टूडेंट की हेल्प की जाएगी, जिन भी स्टूडेंट्स ने सेशन अटेंड किया, क्योंकि ओवरऑल हम इस तरह लेक्चर दे देते हैं, खैर इसमें आप लोगों की हेल्प भी होती है, बट पर्सनली हर एक के केस को डिस्कस करना, उसको डीपली डिस्कस करना, और उस स्टूडेंट को फिर जो वो रेगुलरली उस पर चेक एंड बैलेंस रखना कि वो उन चीज़ों को फॉलो कर पा रहा है या नहीं, एंड टिल द एंड जब तक उसकी जो है वो हैबिट्स सेट नहीं होती, वहां तक उनकी हेल्प करना। सो आई जस्ट वांट कि आप लोगों की वहां तक हेल्प हो। तो आई विल टॉक विद द टीम कि हम कुछ ऐसा भी कर सकें। बाकी हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक अभी वी हैव 20 स्टूडेंट्स, तो आप लोगों में से खैर आई एम ऑलवेज हियर, आप लोगों में से कोई भी अपना कोई भी इशू अगर डिस्कस करना चाहें, दे जस्ट वांट टू कनेक्ट वीकली, कि आप अपनी रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अहमद ने कहा कि आप लोगों के कोई भी इश्यूज रिलेटेड टू स्टडीज, रिलेटेड टू योर गोल्स, तो उस पे आपकी प्रोग्रेस को चेक करना, सो वी कैन गो फॉर दैट। सो यू मे कनेक्ट विद मी। अभी आप लोगों के साथ कम्युनिटी में मैंने लिंक शेयर किया था, ऋषि सर के नाम से मेरा यूजर नेम है, बट गाइस प्लीज कीप इट प्रोफेशनल। No worries, I am just here. By the way, my whole team is here to help you, to help Pakistani youth. Okay, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, एंड अब वो आई गेस थोड़ा ऊपर चला गया है, जिसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी का पूछा था, रेपिटेशन का पूछा था। So I will be just answering that last question. So okay, answering to that question, psychological continuity हमारे पास जो है वो एक मेमोरी नहीं होती। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप कुछ एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है वो कोलैप्स करती है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप ऑलरेडी सक्सेस जो है वो आपका आप अचीव कर रहे हो, ठीक है, तमाम टास्क में, फिर कुछ ऐसा होता है कि यू क्विट, तो उन केसेस में क्या होता है, उस केस में आपकी आइडेंटिटी जो ना वो कोलैप्स करती है। मतलब कुछ ऐसे स्वेयर इवेंट्स हो जाते हैं जो कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है या हमारी वो जो एक आइडेंटिटी होती है ना, वो उसको कोलैप्स करते हैं, ठीक है। वो साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं कि हमारा जो अपने बारे में एक बिलीफ होता है, या हम रेगुलरली अगर कुछ अचीव करते आ रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ को ही कोलैप्स कर देते हैं। तो ये सारा उसी की वजह से होता है।
ओके यार, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन और काफ़ी डीप क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है। ओके सो हम इसको सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि आइडेंटिटी collapses not when we fail, but when we no longer repeat the actions that make us feel like ourselves. When we quit those actions, okay? So in every case, what matters is consistency. Okay, whatever happen, you just need to take action और आपको repeatedly वो काम करना होता है, ठीक है? Once you become consistent in anything, then inshallah, one day you will achieve your goal. ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप लोगों को किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हुई देन प्लीज़ डू कनेक्ट विद मी. यस ज़ारा, प्लीज़ गो अहेड. Okay, so